Bismillahirrahmanirrahim. Dear fourth year class, this is lecture number 4 on Good Night Old Daisy, written by John Vine. This is a long story. At page number 83, we are going to study from this paragraph. Out where Mr. Greeley wondered, but he turned his attention to the controls again. Okay, so इससे पहले आपको पता होगा कि मिस्टर ग्रीले ख्वाब में ओल्ड डेजी के ऊपर ट्रैवल कर रहा है और ये लास्ट उसका ड्रीम है जो डेजी के साथ है। इसमें उसका पुराना अटेंडेंट भी उसके साथ है और वो दोनों डेजी के ऊपर बैठे हुए हैं और सारी पुरानी यादगार जगहों पर ये ख्वाब में जाएंगे। आउट वेयर मिस्टर ग्रीले वंडर्ड बट ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू द कंट्रोल्स अगेन। डेजी वाज राइजिंग इजीली इनटू द एयर, floating steadily upwards. The collection fell away behind them, and Mr. Greeley thought they glimpsed the superintendent standing along in the space Daisy had occupied, looking up at them wonderingly, fumbling in his upper pocket for his glasses. जैसे ही वो जो इंजन है गाड़ी का, मतलब जो गाड़ी है डेजी, उसको लेकर म्यूज़ियम, जिसका नाम यहाँ पर ये दिया हुआ कलेक्शन से बाहर निकले हैं, तो फिर पीछे से जो बिल्डिंग है कलेक्शन की वो नीचे गिर गई है और उसका जो क्रू है और उसका जो अमला है, सुप्रिटेंडेंट है और बाकी अमला है, वो खड़ा हुआ है। देयर इट वाज स्ट्रेचिंग अहेड ऑफ देम इन द ग्लोरियस मूनलाइट। और देखें ख्वाब में भी ग्लोरियस मूनलाइट, रात का वक्त है। A mile, 3 miles, 5, 10 miles of straight rails, और बिल्कुल सीधी सड़क है जिस पर वो चला रहे हैं। The road, Mr. Greeley breathed. He felt Daisy more pressure and more. The miles whipped by, and Mr. Greeley and Ginger shouted for joy in the shuddering cab. तो वो जो कपकपाती हुई सर्दी है उसके अंदर उस कैब गाड़ी में वो कपकपाते हुए जा रहे हैं और गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। She is pulling a treat, Ginger called. Clean, Mr. Greeley shouted. He remembered now. Daisy had been in for servicing. Her broiler had been scraped out. He could never understand why clean water left so much deposit, but it did well. They had done a fine job. She had never pulled more smoothly. 170, said Mr. Greeley to himself, looking at the pressure gauge. Well, why not? And he increased the pressure till the needle stood at 180. 180 तक वो प्रेशर लेकर गए हैं, यानी बहुत तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहे हैं। Better stop there, said Mr. Greeley. He peered ahead through the window. The track stretched away into an inviting landscape of trees and fields. No curves of less than 2 miles radius on the whole stretch. तो ये बहुत खूबसूरत मंज़र था। ट्रीज़ थी, फील्ड्स थे जहाँ पर उनकी गाड़ी आ गई। He remembered it, this favorite run. But what was different about it? Oh yes, the housing estates had gone. These woods and meadows had been gradually shoveled away. यानी उसी पुराने टाइम पर वो आ गए हैं जब ये नया गाड़ी चलाने लगा था। बाद में जो हाउसिंग और स्टेट्स जो चीज़ें बनी थी, अब इसके ख्वाब में वो सारा कुछ नहीं है। And hundreds of little brick boxes had sprung up, connected by concrete ribbons and towered over by glaring arc lights. Now all that was gone. The trees waved softly in the moonlight and threw their shadows onto the broad fields. Mr. Greeley blew Daisy's whistle, and he could imagine the sound echoing to lonely farmhouses along with the bark of a fox and the cry of an owl.
ओके, ये नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से आप देखेंगे. बट ऑफ कोर्स इट वाज नो मिस्ट्री. द टाइम हैड bowed him to old age was rolled back. He and Daisy were young again. The trees had not been cut down and the meadows still gleamed under the moon. ओके, तो ट्रीज़ को भी काटा नहीं गया था. मीडोज़ अभी भी सब्ज़ाज़ार अभी भी उसी तरह से चमक रहे थे. मतलब कटिंग करके जो बाद में शहर बना दिया गया वो सारा कुछ चेंजेस नहीं थी. ग्रीले अपनी यूथ पीरियड में गया हुआ था ख्वाब में. रोलिंग अप हिज स्लीव्स मिस्टर ग्रीले नोटिस्ड एट वंस हिज आर्म्स वर मोर फुली फ्लैश्ड. द स्ट्रिंगली ओल्ड मैन's muscles had rounded out into the firm contoured strength he had once taken for granted. And all at once Mr. Greeley knew that he would never be old again. He stood straighter. He saw more clearly. Daisy, in her thundering power and bulk, seemed to submit to him like a bride. Okay, Daisy उसको एक ब्राइड की तरह, दुल्हन की तरह नज़र आ रही थी. खुद वो बहुत यंग था, अपने यूथ पीरियड में वो खुद को देख रहा था. एंड बैक होम ही न्यू मैरियन वेटेड फॉर हिम. मैरियन मीन्स के मिस्टर ग्रीले की वाइफ. और उसे याद है कि मैरियन भी उसका इंतज़ार कर रही होगी. दिस इवनिंग एट द एंड ऑफ द रन बैक ही वुड गेट द बस होम एंड मैरियन वुड बी वेटिंग. ही वुड टेक ऑफ हिज वर्किंग क्लॉथ्स एंड वॉश एंड ईट एंड लेटर दैट नाइट they would love each other as they used to do. तो उसे याद है कि अब मैं जाऊंगा, मेरी बीवी मेरा वेट कर रही होगी, मैं जाकर घर में अपनी बस को घर में ले जाऊंगा, वहाँ पर ही मैं रेस्ट करूंगा, खाना खाऊंगा. ये अगला पैराग्राफ देखें यहाँ से. डेजी रोल्ड इजीली along at 60 miles an hour. Her pressure steady at 180. The track went into a long full-speed curve and Mr. Greeley took the opportunity to look back and see train they were pulling. 12 coaches and a guard's van. 13, said Mr. Greeley and grinned. That was a superstition that had never bothered him. Okay, यहाँ से आ जाए अगला पैराग्राफ आगे. Daisy smoke plumed above them. The steel plates shuddered beneath. The dark trees flew by and the wind roared past their ears. Jinger leaned on his shovel and he and Mr. Greeley grinned at each other with utter contentment. Okay, तो जिंगर और मिस्टर ग्रीले ने एक दूसरे को अटर मतलब कंप्लीट कंटेंटमेंट मतलब पीस ऑफ माइंड के साथ पुरसकून एक दूसरे को देखा. Soon the run would be over in some unexpected way. In fact, they were already run the return trip. And Marion would be putting the pie in the oven and beginning to watch for the bus. Okay, अब वो वापस आ रहे हैं सफ़र से और उसे ख्वाब में वो याद करे कि उसकी बीवी मैरियन उसका वेट कर रही होगी और वो ओवन में समोसा या कचौरी पहले से वो डाल चुकी होगी बनाने के लिए. That would bring him home. यहाँ होम के वर्ड पे उसका ख्वाब टूट गया. उसने कहा मैं घर जाऊँगा और वहाँ मैरियन मेरा वेट कर रही होगी खाने पर. और घर के लफ्ज़ पे उसका ख्वाब टूट जाता है. और ख्वाब टूटता है तो क्या उसे नज़र आता है. स्टैंडिंग ओवर मिस्टर ग्रिले द यंग डॉक्टर shook his head to Mrs. Foster and her husband. तो उसने देखा कि यंग डॉक्टर है और मिसेस फॉस्टर उसकी बेटी और उसका दामाद वो खड़े हुए हैं. His resistance is weak, he said. You can't expect anything else at his age. We can get him into an oxygen tent and he might rally or he might not. He rubbed his eyes. Okay, अब ऑक्सीजन लगाने का कह रहे थे मिस्टर ग्रीले को और अब उसने देखा है, अपनी आँखों को रब किया है, रगड़ा है. It was a continual annoyance to him that people seemed to wait for his turn on night duty before deciding to die.
Why couldn't they die at weekends? We must do everything we can, of course, said Cyril Foster. Okay. तो सिरल जो दामाद है वो क्या कह रहे हैं कि जो कुछ हम कर सकते हैं हम इसके लिए ज़रूर करेंगे. इनसाइड ही फेल्ट ए सेंसेशन ऑफ लाइटनेस एंड रिलीफ. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. अब ये सिरल जो दामाद है उसकी खुद गर्जी दिखा रहे हैं, सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं कि दिल में वो पुरसकून था, अपने आप को लाइट फील कर रहा था कि ये ऑक्सीजन पे जा रहा है. अब इसकी डेथ होने वाली है. इसके जाने के बाद इसका एक कमरा भी जहाँ ये रहता है ये भी बच्चों के लिए खाली हो जाएगा. रिलीफ ऑफ विच ही हैड ग्रेस टू फील स्लाइटली अशेम्ड. और वो जो रिलीफ थी वो उसके साथ उसे अशेम भी दे रही थी. विद द ओल्ड मैन गोन दैट बैक रूम वुड बी वेरी यूज़फुल. तो जब ये ओल्ड मैन चला जाएगा इस दुनिया से तो उसका जो रूम है वो भी यूज़ हो सकता है. द चिल्ड्रन कुड हैव इट एज ए रम्पस रूम. तो चिल्ड्रन उस रूम को अपने इंजॉयमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. दे वुड ऑलवेज वे वांटेड अ रम्पस रूम. वो हमेशा एक रम्पस रूम कहते रहे हैं बच्चे. थिंग्स हैपन वेरी क्विकली आफ्टर दैट. मिसेस फॉस्टर शेड अ फ्यू जेन्युइन टीयर्स. ओके, अब डेथ अनाउंस हो गई है मिस्टर ग्रिले की. मिसेस फॉस्टर ने जेन्युइन रियल, ज़ाहिर वो बेटी है वो इमोशनल हो गई है फादर की डेथ पर, तो उसने अपने आंसू गिराए. Their eldest child, Arlene, appeared on the landing and was shooed back to bed by Mr. Foster. तो जो सबसे बड़ा बेटा था मिसेस फॉस्टर का वो आया है लेकिन उसको मिस्टर फॉस्टर वापस बेड पे सुलाया. पुअर ओल्ड डैड, मिसेस फॉस्टर whimpered. They didn't keep any heating on in that place. अब वो याद कर रही है कि मेरा बेचारा बाप, क्योंकि म्यूज़ियम में वो ज़्यादा हीट नहीं जलाते तो इस वजह से मेरे बाप को सर्दी लग गई होगी, उनकी डेथ हो गई. कोर्स ऑफ नेचर 75 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम सेड द डॉक्टर. तो डॉक्टर ने उसको क्या समझाया बेटी को कि ये तो नेचुरल होता है डेथ. 75 साल वैसे भी एक लंबा टाइम होता है किसी की लाइफ के लिए. गुड नाइट ओल्ड डेजी सेड मिस्टर ग्रीले. तो ये वो सेंटेंस जो उस शाम आने से पहले लास्ट टाइम ये सेंटेंस बोला था मिस्टर ग्रीले ने, और अब फिर राइटर ने ये जुमला लिखा है. मीन्स के मिस्टर ग्रीले भी चला गया और उसके साथ ही वो हमेशा के लिए उसने डेजी को गुड बाय कह दिया. द एम्बुलेंस अराइव्ड. मिस्टर फॉस्टर वेंट डाउन and opened the door. The ambulance men joked as they came on the stairs. They got Mr. Greeley on a stretcher and carefully started to go back the way they had come. तो एम्बुलेंस पर डेड बॉडी लेने के लिए आए थे जो मैन, वो एक दूसरे से जोक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे. तो यहाँ पर दिखाया गया है कि लोगों के सामने ही डेड बॉडी चली जाती है, लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन दूसरे लोगों पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. हालांकि उन्होंने भी एक दिन चले जाना होता है और ये उनके लिए बिल्कुल एक प्रोफेशनल स्टेप था क्योंकि उनके सामने हर वक्त डेथ्स हो रही होती हैं. आर्लीन अपीयर्ड अगैन एंड was whisked back to bed by Mrs. Foster. Mr. Greeley died. तो अर्लीन जो नवासा है मिस्टर ग्रीले का वो दोबारा आया है लेकिन मिसेस फॉस्टर ने उसको दोबारा से बेड पर भेज दिया है. मिस्टर ग्रीले की डेथ हो गई. मिस्टर फॉस्टर हेल्ड द फ्रंट डोर ओपन एज द एम्बुलेंस मैन कैरिड द स्ट्रेचर जेंटली आउट. द डॉक्टर सेड ही मे रैली और ही मे नॉट. And the great locomotive, standing silent and imprisoned on the cold grey floor of the collection, entered another phase of its history. Okay, तो ये डेड बॉडी चली गई मिस्टर ग्रीले की, और लेकिन वो जो ग्रेट लोकोमोटिव है डेजी, वो जो गाड़ी है वो अपनी हिस्ट्री के एक और नए पीरियड में दाखिल हो गई जो कलेक्शन की फ़र्श पर खड़ी हुई है. मतलब उसके अटैचमेंट जिस बंदे के साथ थी वो बंदा तो चला गया है, अब उसका एक नया सेशन
उस गाड़ी का शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म हो गया। इसके कुछ क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किए थे, बाकी भी इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चंस देख लीजिएगा। अब स्टोरी तो हमने बहुत डिटेल में, आज 4th ऑनलाइन लेक्चर है और एक लेक्चर हमने क्लास में भी इसका किया था। तो ये 5 लेक्चर के ऊपर जाकर ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे कुछ ग्रामर भी देखेंगे, बाकी भी पोइट्री भी अभी हमारी कुछ रहती है, वो भी मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में करवाऊंगी ताकि हमारा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाए। आप लोग खुद से तैयारी करते रहें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।